Dear students, we get 100% result in this board examination, and here we will represent our result of the Bright Star Academy. So dear student, you can see here our achievements. Okay dear students, good afternoon to all of you. On our third day, we will going to start chapter number 1, maintaining our surrounding. This is our third lecture. And on last lecture, we have understood about the different type of the state like a solid state, liquid state and gaseous states. So dear student, now we are going to study about the changes of state. We have mainly three states are there. First one is a solid state, second one is a liquid state, and third one is a gaseous state. Now dear student, we have to study how this type of the state will be changed through a different condition. For example, by changing its temperature and by changing its pressure, we can change the state of the substance. Now, when a solid is heated, it will be changed into the liquid. We know that generally solid when it is heated, it is converted into the liquid, and when liquid is further heated, it will be converted into the gaseous state. So we know that these three states are going to be interchanging by applying temperature. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा यहाँ पे तो वैसे वैसे उसका इंटर कन्वर्जन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वो आइस के फॉर्म में पाया जाएगा. अगर हम 5 to 6 डिग्री पे देखते हैं वहां पे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में. और अगर 100 डिग्री, अब वो 100 डिग्री प्लस सेल्सियस हम देख रहे हैं तो कौन सा स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में. दैट मींस इनटू द वेपर स्टेट, एंड दिस वन इज इनटू द लिक्विड, दैट मींस इनटू द वाटर स्टेट. Now dear student, when the gas is cooled, that means a reversible process. This gas is going to cool, it will be converted liquid, and when the liquid is cooled down, it will be going to converted into the solid state. Okay, when gas is cool, it will be converted into the liquid, and when liquid is further cool, it will be converted into the solid. Okay, now here we have discussed one example. If the ice is heated, it will be changed into the water, and if the water is further heated, it will be changed into the steam, or it will be changed into the water vapor. And if the steam is cooled or steam is cooled, it will be changed into the water, and water is further cooled or we put into the freeze, it will be converted into the ice. So dear student, we can say that here the mainly three states, solid, liquid and gaseous. By applying temperature, solid is converted into the liquid, liquid is converted into the gaseous state, and by applying the coolness, gases will be converted into liquid, and by further cooling, liquid is converted into the solid state. So dear student, we can also say that here the particles in the solid state are come closer. By applying heat, these particles are start moving and they have changed their state, and on further applying more temperature, increase of more temperature, they are converted into the gaseous state. So we can say that solid, liquid and the gaseous state. Okay dear students, now our next topic is about the melting. This is also known as the fusion process. Now what is the melting? You are familiar about the melting process. When we heat a solid, it will be converted into the melt. Okay, now when the solid is heated, the particles are being vibrate with the greater speed. That means यहाँ पे जो बेटा मेरे पास सॉलिड है उसको मैं हीट कर रहा हूँ तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होने का स्टार्ट हो जाएगा विद द ग्रेटर स्पीड, एंड दे आर बिगिन मूव मोर फ्रीली, और वो क्या होंगे यहाँ से एकदम फ्रीली स्टेट में मूवमेंट करने का स्टार्ट करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल समर सीजन में आपको ऐसा बोला है कि भाई क्लासरूम के बाहर जाके आपको धूप में खड़ा रहना है, तो जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा, फॉर एग्जांपल 8 o'clock है उतनी धूप नहीं लगेगी, 9 o'clock उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे 10, 11, 12, 1, 2 बजेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट वहां पे स्टार्ट होगी. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सब बच्चे वहां पे मूवमेंट करेंगे. सो द पार्टिकल्स आर गोइंग टू स्टार्ट द वाइब्रेशन, और वाइब्रेटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्टेट वहां पे चेंज हो जाएगी. ओके, एंड देन द पार्टिकल्स पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे आइस के फॉर्म में पाया जाता है. अब बर्फ को जैसे फ्रीज में से निकाल के बाहर रखोगे तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और धीरे धीरे बर्फ का जो क्यूब है आइस है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे मेल्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा. एंड द सॉलिड इज अ मेल्ट एंड चेंज इनटू द लिक्विड.
एंड दिस प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मतलब ये प्रोसेस को बेटा दूसरे कौन से नाम से जानी जाती है? इट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, फ्यूज होना। ओके चलो, नाउ द टेंपरेचर एट व्हिच द सॉलिड इज मेल्ट इट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हर एक का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक का एक आइडियल टेंपरेचर होता है। वो टेंपरेचर आने के बाद ही वो क्या होगा? मेल्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि भी क्लासरूम में कोई दो बच्चे बैठे हैं, हम अपने बाजू वाले जो फ्रेंड है हमारा उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उसका टेंपरेचर हाई नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? सुन लेगा भाई चल कोई बात नहीं, तो परेशान करो कोई दिक्कत नहीं। बट एक लिमिट उसकी क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद वो खड़ा होकर क्या करेगा? एक आपको लगा देगा। तो सेम सिचुएशन सॉलिड स्टेट में जब उसका टेंपरेचर होता है तो वो वहां पे स्टेबल फॉर्म में रहता है। जैसे कि 0 डिग्री है, 0.5 हुआ, 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, 1 डिग्री हुआ, तो भी वो वहां पे सॉलिड अपनी स्टेट वहां पे रखने का ट्राई करेगा, बट वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने स्टार्ट होगा। पर जैसे ही अगर उसको 50 डिग्री पे आप ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे मेल्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे मेल्ट होने का स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, वहां पे सॉलिड है, तो उसको मैं मेल्ट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर उसका, फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स सब्सटेंस हम ले रहे हैं यहां पे, तो एक्स सब्सटेंस है मेरे पास, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज होगा 1 2 10 20 40 तो सो ऑन, जब 60 डिग्री टेंपरेचर नहीं आएगा तब तक ये क्या होगा? मेल्ट होने का स्टार्ट होगा नहीं। और जैसे ही 60 डिग्री टेंपरेचर आ जाएगा तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सीधा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका दूसरा यूनिट है यहाँ पे केल्विन, तो वो होता है वहां पे 273। आगे के लेक्चर में हम कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि भाई सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में देखेंगे। एक चीज से याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो फॉर एग्जांपल आपको 25 डिग्री दिया गया है बेटा, तो सिंपल क्या करना है? 25 में ऐड कर दो, 273 ऐड करो, 298 केल्विन इज द आंसर। अगर आपको 100 डिग्री यहां पे दिया गया है तो कितना होगा? 373 डिग्री केल्विन, तो वो सीधा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सीधा आपको क्या कर देना है? वहां पे ऐड कर देना है 273, जो भी नंबर दिया गया है उसमें ऐड कर देना है। अगर एग्जाम में ऐसा रिवर्सिबल पूछ लेते हैं कि केल्विन में से सेल्सियस पे ले जाओ, तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे? उसमें से सबट्रैक्ट कर लोगे। ओके, 273 को हम क्या कर लेंगे? सबट्रैक्ट कर लेंगे। वो हम आगे समझेंगे। केल्विन में भी कन्वर्जन करना है, फ़ारेनहीट में भी कन्वर्जन करना है। जो ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर होता है वो फ़ारेनहीट में वहां पे मेजरमेंट होता है। उसके बाद का बेटा आपका टॉपिक आता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है तो उसके बारे में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस, 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस और 1 kg ऑफ सॉलिड। मेरे पास 1 किलोग्राम सॉलिड है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है लिक्विड में। मतलब मुझे 100% उसको किस में कन्वर्ट करके ले जाना है? लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्ड बेटा मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी डेफिनेशन आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो उसमें आपको ये वर्ड वहां पे मेंशन करना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है वो वहां पे नेसेसरी है। आपने 8th स्टैंडर्ड में फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में लास्ट थियरी हमकी आती थी, उसमें वर्ड वहां पे यूज किया गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो उसकी डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। ऐसी डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिर्फ इतना ही चेंज होगा, यहाँ पे सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे होगा लिक्विड टू गैसियस और लिक्विड टू वेपर, तो उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपर होने के लिए जिसका टाइम वहां पे लगता है, जो कन्वर्जन उसका होता है वेपर में, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहां तक रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, एज वेल एज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन है, इवापोरेशन क्या है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तब तक